All right, let's continue from where we left yesterday. So we covered the whole table basically. We just discussed yesterday. We started discussing with what is time value of money. $100 today is not the same as $100 in the future. We did the discount rate or the required rate of return. That is going to have three parts. One is the real return, compensation for deferred consumption. Second is the inflation premium, that is a compensation for loss of purchasing power. You have the risk premium, that is a compensation for taking risk. Risk could be of three types: default, liquidity and maturity risk. We'll do more kinds of risk later on. Then we moved into, you can have a single cash flow. You can calculate the present value and the future value for the same. 1 plus r to the power n, you multiply 1 plus r to the power n, you'll get the compounded value, that is the future value. And when you discount it, you divide by 1 plus r to the power n to get the present value. It is same as your compounding frequency wala formula. Uske baad mein 1 becomes 1.12 annually, 1 becomes 1.06 square if you are compounding 12% per annum compounded semi-annually, 1.03 to the power 4 quarterly, 1.01 to the power 12 monthly, and infinite times continuous compounding. उस पे वापस करेंगे अपने details में. That is your e to the power 0.12. E is a natural number, just the way you've got a number called pi, you have the natural number. That is your e. And e to the power 0.12 would give us 1.1275. Calculator पे उसको use करना हम लोग देख लिए थे last time. उसके बाद में we got into annuity. Annuity would be regular amount पे, regular time पे equal amount of money that is being paid. उसमें annuity दो type का होगा. One you're receiving ordinarily, we receive the amount of money at the end of the period. So ordinary annuity, and annuity due would be when you're receiving the cash flows at the beginning of the period. उसका PV and FV निकालने के लिए PMT would be the annuity वाला part. उसका PV and FV and all निकालना हम लोग सीखे थे. उसके बाद में I was telling you that don't use a second PMT, second enter. BGN mode use मत करो. उससे better you take either 3 cash flows का PVN plus 100 या 4 cash flows का PVN then 1 plus R करके. I hope everybody can recall. I'm just revising what I did yesterday. Then we had the uneven cash flows. Uneven cash flows में second row second button CF है. Cash flows में cash flows enter करोगे. उसके बाद में NPV button पे press करोगे. उसमें interest rate input करके scroll down करके you will compute your NPV. So uneven cash flows का जो value निकालना है, the present value, that also is easily calculatable. And perpetuity would be wherein you want the equal amount of money regularly, but that needs to go on till infinity. उसमें exactly amount by I या PMT divided by I by Y, that's going to give you the answer. Calculator पे नहीं आएगा. You can't insert PMT because n infinite डालोगे कैसे? You can't insert infinity on the calculator, so you have to do a by I and you will get the value of perpetuity. उसमें compounding वाला effect नहीं होगा ना perpetuity में, because you're going to get the cash flows out every single time period. So that is what we had covered yesterday. So let's continue. Now since it's a first reading, since it's a beginning of the syllabus, मैं थोड़ा बहुत extra ज़्यादा mark कराऊंगा book में आप लोग को अभी, and उसके बाद में you guys will get into the habit. Try to put most of the things in the textbook itself. It's always easier because you know studying from one place would make your retention much better. तो वो वाला चीज़ try करिएगा थोड़ा सा. And there is a lot of content given in the book. You have to shorten the content. मतलब एक बार mark करो, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ. So time value of money with your textbooks with you. टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्स्ट 2 पेजेस में कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है. कंपाउंड इंटरेस्ट टर्म मार्क करो फर्स्ट पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ में जस्ट अंडरलाइन द वर्ड फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू. एंड यू नो एज यू मूव फॉरवर्ड विद द सिलेबस यू विल अंडरस्टैंड कि पीवीएफवी तो कॉन्सेप्चुअली मतलब एबीसीडी टाइप से आ रहा है. अभी उसको अलग से पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ नॉनसेंस गिवन. Nonsense in the sense that Texas Instrument BA2 plus calculator में you press I by Y, then you do this, then you do that. By the time you are done with your practice, you will not have a problem using the calculator as such, right? So that will not be that big an issue. आप समझ रहे हो? So calculator का steps वगैरह दिखा हुआ है, तो वो तो एग्जाम में रिवाइज नहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि calculator तो यूज करना आ जाएगा तब तक एकदम कंफर्टेबली. नेक्स्ट इफ यू सी टाइमलाइन दिया हुआ है. टाइमलाइन का भी कोई डेफिनेशन तो ऑब्वियसली नहीं पूछेगा. डोंट एक्सपेक्ट दिस कि व्हाट इज अ टाइमलाइन, वैसा थोड़ी क्वेश्चन आएगा. टाइमलाइन इज जस्ट दैट यू आर प्लॉटिंग ऑल द कैश फ्लोज ऑन अ टाइमलाइन वेयर इन यू आर प्लॉटिंग फॉर एवरी ईच रिस्पेक्टिव टाइम पीरियड पर इंटरवल पर व्हाट काइंड ऑफ कैश फ्लोज यू आर गोइंग टू जनरेट. उसी टाइमलाइन वाला में जस्ट अनलाइन द टर्म्स डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग. आई डोंट थिंक यू नीड टू रिमेंबर द डेफिनेशन और एनीथिंग फॉर दिस. You understand discounting is when you're bringing FV to PV and compounding is when you're taking PV to FV. वो टाइमलाइन का एग्जाम्पल दिया हुआ है. If you had not taken it yesterday, 2 या 3 कोई को भी एक डैश दे करके, 2 को डैश दे करके end of year 2 beginning of year 3. So in case you had not mentioned that, that is very important. And 1 to 2 के बीच वाला जो पीरियड है, that is the second year. 1 to 2 के बीच वाला जो पीरियड है, that is the second year. 2 is the ending of year 2 or beginning of year 3. That you need to be comfortable with. ठीक है? This part is okay. We have done this.
नेक्स्ट एलओएस में आओ. नेक्स्ट एलओएस में व्हाट इज इंटरेस्ट रेट, रिक्वायर्ड रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डिस्काउंट रेट्स. इज काइंड ऑफ सिनोनिमस व्हेन वी आर यूजिंग दीज टर्म्स. डिस्काउंट रेट, रिक्वायर्ड रिटर्न, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वी हैड डिस्कस दैट. इसमें भी कुछ खास करने का नहीं है. उसके बाद में मूव टू अगेन टू द नेक्स्ट एलओएस. रियल रिटर्न, वो कॉम्पनसेशन, वो सारा चीज जो टेबल बना के दिया था उससे पूरा का पूरा ये एलओएस कवर हो जाएगा. यू वोंट हैव टू रीड इवन अ सिंगल लाइन इन दिस एलओएस. वो कल टेबल किए थे ना आपने, रियल इन्फ्लेशन, कॉम्पनसेशन एंड एवरीथिंग, दैट विल कवर द सेकंड एलओएस. सो लाइक इफ यू सी, आई थिंक यू विल नॉट बी एबल टू सी यहाँ से, वो डिफरेंट कलर का पेन वेन यूज करो, पूरा एलओएस इज माई फर्स्ट स्टूडेंट्स बुक. सो एवरीथिंग इज पुट इन ओवर हियर, राइट. सो मेक योर कंटेंट इन सच अ मैनर कि रिवाइज करते टाइम बहुत कम टाइम लगेगा. यू विल नॉट बी एबल टू गिव 10 एग्जाम्स ऑफ 10 सब्जेक्ट्स ऑन 10 डिफरेंट डेज. यू आर गोइंग टू गिव वन एग्जाम, वन डे पे ही पूरा का पूरा पेपर होगा, राइट. सो यू नीड टू रिवाइज एवरीथिंग इन द लास्ट 2-3 days अगेन, अ वेरी क्विक रिविजन. सो उसके हिसाब से अभी पढ़ाई करिए बहुत अच्छा से. एवरी सिंगल लाइन यू आर सपोज टू बी रीडिंग. अंडरलाइन ओनली दैट पार्ट विच यू थिंक यू विल बी रीडिंग अगेन रिविजन के टाइम पे, राइट. क्योंकि बहुत सारा चीज का एक्सप्लेनेशन दिया, यू डोंट नीड टू रिवाइज ऑल ऑफ दैट. एंड एग्जाम्पल्स में इन पर्टिकुलर, आई विल स्टार्ट ऑफ विद द एग्जाम्पल्स ऑल्सो राइट नाउ. एग्जाम्पल्स में इनका सोल्यूशन माइट बी 1 page लॉन्ग. आई विल गिव यू अ सोल्यूशन टाइम लाइन बना करके विद इन 1 line और 2 line. तो अपने को तो एग्जाम्पल्स देख करके सोल्यूशन समझना है. एंड यू नीड टू सिंगल टिक और यू नीड टू टिक मार्क दी एग्जाम्पल्स ऑल्सो, क्योंकि आधे ज्यादा एग्जाम्पल्स जो अभी दिए हुए द वेरी बेसिक, यू वोंट नीड टू प्रैक्टिस दैट. रिविजन के टाइम पे कौन से एग्जाम्पल्स वापस देखने का मन करेगा, उसके हिसाब से नीड टू मार्क दोस. सो व्हेन यू आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सी अलग से बैठ करके एक दिन में यू कांट डू ऑल दिस. व्हाइल स्टडिंग रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड स्टार्ट डूइंग इट दिस वे. इट विल बी वेरी इजी. दूसरा चीज आपको बोला था ऑन द फर्स्ट डे, आई अगेन रिपीट इट, कीप 1 sheet of paper in every single book and keep writing mistakes. Like don't put same sign for PMT and FV. सपोज वो ऑपोजिट साइंस डाले ना इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के लिए, तो आएगा सम उसमें. सो लाइक यू नो यू कैन पुट दैट कि डोंट मेक दिस मिस्टेक, डोंट फॉरगेट टू डू डिवाइड सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, देखना भूलना मत. सो राइट डाउन द मिस्टेक्स, बिकॉज एग्जाम डे के पहले व्हेन यू कॉन्शियसली रीड दैट दीज मिस्टेक्स यू आर नॉट सपोज टू मेक, यू विल नॉट मेक दोज मिस्टेक्स. एंड दूसरा चीज, फॉर्मूला शीट्स अपने हिसाब से अपने हैंड राइटिंग में बनाइए. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. योर अटेंशन विल इंक्रीज एंड यू विल नॉट सिट एंड मेक फॉर्मूलाज ऑन वन डे. दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. While studying, जैसे ही फॉर्मूला है उसको डाला, because then you will put on arrows and you know you'll write a little more description and all in your handwriting. Exam day पे वो पढ़ने में बहुत easy होगा, बहुत helpful होगा. So start doing that एकदम starting से, so that you're in that habit from the very beginning, right? It'll be very helpful. And trust me, L1 का today, L3 का class में we were doing 2 formulas. याद नहीं आ रहा मेरे को. Roy's safety first, 3rd or 4th chapter in quants. That is again there in L3. And L3 में they are not teaching you Roy's safety first ratio. We are just going to immediately use it in level 3. So your level 1 needs to be very strong that way, right? Next LOS में आते हैं, ये LOS cover हो गया था, and I'll make sure that every single LOS is covered, so you don't have to worry. And मैं book के साथ में भी आपको once maybe there will be difficult portions, maybe जहाँ पे word to word भी पढ़ाऊंगा, कुछ बहुत difficult LOS हुआ तो, and if it's an easy one, I'll be teaching everything and I'll be covering every single LOS, every single point. Next वाला में effective annual rate. Effective annual rate, EAY और EAR is the same thing. EAY और EAR is the same thing. उसका फॉर्मूला दे करके रखा है 1 plus periodic rate to the power m-1. Cancel that formula off and write it this way. Effective annual yield, effective annual rate. जब हम लोग ये फॉर्मूला इस तरीके से याद कर लिए हैं, तो बुक में इस R/M को पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट करके दे रहा है. And they're giving you a formula. Don't you think same चीज को अलग अलग टर्म्स के हिसाब से याद करोगे तो it will be more confusing. You already have a lot of formulas, you already have a lot of content to do. Why do you want to repeat it? इसीलिए बोल रहा हूँ अपने हैंड राइटिंग में अपने हिसाब से फॉर्मुलाज बनाइएगा. वो क्या बोल रहे हैं 1 plus periodic interest rate to the power m. That is what it is telling you. That is 1 plus R/M to the power m. और ये तो कर चुके हो आप लोग कल, right? So don't try to learn the same thing again and again in different ways. It will make your work more tedious. अभी अपने सारा का सारा एग्जाम्पल्स भी क्विकली करते जाएंगे साथ साथ में, एंड देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन. सो लेट्स प्रैक्टिस व्हाटएवर वी हैव डन यस्टरडे. एग्जाम्पल्स देखना बहुत सिंपल है. कंप्यूट इफेक्टिव एनुअल रेट इफ द स्टेटेड एनुअल रेट इज 12% कंपाउंडेड क्वार्टरली 1.03 to the power 4. ये तो मेंटली हो रहा है, ये तो कल कर ही लिए थे हम लोग. 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली मतलब 4 times in a year. तो 12/4 1.03. 1 becomes 1.03 in 3 months. तो 1 ईयर में कितना 1.03. वो 3 पे भी 3% कमाई होगा. 1.03 स्क्वायर, 1.03 क्यूब, 1.03 to the power 4. सो आंसर्स 1.03 to the power 4. तो ये एग्जाम्पल हिसाब से टेक नहीं करना चाहिए, आपको भी पता है बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है. नेक्स्ट वन, यूजिंग अ स्टेटेड रेट ऑफ 6%,
कंप्यूट EAY सेमी, क्वार्टरली, मंथली एंड डेली कंपाउंडिंग। वो आपको वो एग्जांपल जैसे मैंने कल 12% लेके कराया था वही कर रहा है। तो 6% सेमी एनुअल होगा तो 1.03 स्क्वायर, क्वार्टरली होगा 1.015 टू द पावर 4, मंथली होगा तो 1.005 टू द पावर 12। डोंट मेक दोज मिस्टेक्स। 0.5% इज 1.005, 0.5% इज नॉट 1.05, 1.05 विल बी 5%, 1.005 होगा ना मंथली अगर करेंगे तो। फॉलोइंग राइट? आई कैन मूव फॉरवर्ड एवरीवन? प्रॉब्लम? एंड डेली कंपाउंडिंग करेंगे तो उसका वो इन लोगों ने अलग तरीके 1 प्लस 0.06 बाई 365 टू द पावर 365। इसको कैलकुलेटर पे अगर करना है आई स्टार्ट विथ 0.06 डिवाइड बाई 365 प्लस 1 इक्वल्स टू द पावर 365 इक्वल्स टू आंसर। इट्स सिंपल, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग द कैलकुलेटर। 1 प्लस से स्टार्ट करोगे ना तो 1 प्लस ब्रैकेट ओपन 0.06 बाई 365 ब्रैकेट क्लोज, फिर इक्वल्स टू देन टू द पावर 365 करना होगा। सो ये सब चीज तो बेसिक्स, यू हैव टू गेट कंफर्टेबल राइट विद द कैलकुलेटर। वीव डन ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट एग्जांपल, ग्रोथ विथ क्वार्टरली कंपाउंडिंग। क्वेश्चन देखिए, John plans to invest 2500 in an account. He plans to invest 2500. 2500 PV, FV, PMT क्या है? PV. He is planning to invest. That will earn 8% per year with quarterly compounding. मतलब 1.02, 1.02 square वैसा है. How much will be in the account at the end of 2 years? 2500 into 1.02 to the power 8. I hope you guys can do it mentally. 2500 present value था. 1 becomes 1.02 in 1 quarter. 2 years में कितना quarters होगा? 8 quarters होगा ना, तो 1.02 to the power 8 times हो जाएगा. 1 will become 1.02 to the power 8 times. तो 2500 कितना बनेगा? Into 2500. That is your formula. FV is equal to PV into 1 plus R by M whole to the power M. 2500 invest किए, 1 becomes 1 plus 0.08 by 4. I don't want to do all this. 1 becomes 1.02. 2 years में 4 quarters 8. इतना स्टेप थोड़ी लिखना है, और अपना कोई स्टेप मार्किंग नहीं, अपना MCQ है, अपने को आंसर्स निकालना है. You have to be very fast. You have to be very fast. Initially it's fine, you'll take time to get used to the calculator, but eventually that is the logic, fast, efficiency, that is what we're looking at. Presentation step से मतलब नहीं है. Right? वो सब तो ऐसे भी आ जाएगा ना if you know the content. Next question. So ये सब examples is very very average. Present value with monthly compounding. Alice would like to have 5,000 saved in an account. Everybody is with me, right? Question दिख रहा है ना? Alice would like to have 5,000 saved in an account at the end of 3 years. 5,000 क्या है? PV, FV, PMT? FV. If the return on the account is 9% per year with monthly compounding, how much must Alice deposit today in order to reach her saving goals in 3 years? So basically यहाँ पर again the same formula, but she wants 5,000 is equal to PV into 1 plus 0.09 by 12 whole to the power 12 into 336. Monthly compounding 3 years, यही है ना? That is what it is. इसमें PV back calculate हो जाएगा. एक और तरीके से कर सकते हो आप. 5,000 को FV डालेंगे, 0.9 by 12, 0.75 को I by Y डालेंगे, N 36 डालेंगे. N is the number of periods, I by Y is the rate per period. So I by Y 36, N 36 आएगा, I by Y 9 divided by 12. You don't enter I by Y in decimal format because calculator को already पता है कि अपने interest rate ही डालने वाले हैं. तो 9 divided by 12 0.75 जाएगा, right? 9 by 12 0.75 को अपने N में I by Y में डालेंगे, N में 36 डालेंगे, FV में 5,000 डालेंगे and compute PV करेंगे and you should get the answer. And compute PV करेंगे and you should get the answer. बोलो, comfortable till here everyone? This is very simple. एक बार try करके देख लीजिए. I'll give you a minute. Quickly calculator खाली चलाने के लिए time दे रहा हूँ. Quickly run your calculator. These are very basics, very below average questions. आ रहा है आंसर?
If I want to do it without using the PVFE wala part, how will I do it? 0.09 divided by 12, I'll get something 0.0075 plus 1, I'll get this, to the power 36, I'll get this. I'll press reciprocal wala button, I'll get this 1 by this whole thing into 5000, I'll get my answer. Right? We can do that ना. ब्रैकेट नहीं यूज करना पड़ा ना कहीं पे भी, वरना ब्रैकेट यूज करना है तो 5000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन 1, अच्छा 2 बार ब्रैकेट ओपन करना होगा, इट बिकम टीडियस. 5000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन, फिर एक और ब्रैकेट ओपन 1 प्लस ब्रैकेट में 0.09 by 12 ब्रैकेट क्लोज to the power 36 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू, देन यू विल गेट द आंसर. इट विल बिकम वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. कैलकुलेटर वो थोड़ा टाइम दीजिए, जस्ट स्टार्ट यूजिंग द कैलकुलेटर, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, यू विल बी फाइन. समझ रहे हो? 5000 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट ओपन, बॉड मास करा रहा हूं 1 प्लस फिर ब्रैकेट ओपन, बट 1 प्लस ब्रैकेट ओपन 0.09 by 12 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे ना तो ये आ जाएगा टू द पावर 36 दिस डिवाइड बाय दिस का हो जाएगा. इसलिए सब पहले से सोचना पड़ेगा दैट आई हैव टू स्टार्ट 2 ब्रैकेट्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर 5000 डिवाइड बाय 1 ब्रैकेट ओपन करके दिस तक कर दिए तो टू द पावर 36 जब करने जाओगे तो दिस डिवाइड बाय दिस का 36 हो जाएगा ना. अपने को तो खाली इसका पावर 36 करना है, तो 2 बार ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा. 5000 डिवाइड बाय ब्रैकेट ओपन, उसमें 1 प्लस ब्रैकेट में 0.09 by 12 ब्रैकेट क्लोज. सो राइट नाउ यू आर इन द सेकंड ब्रैकेट के अंदर. टू द पावर 36 यू क्लोज दैट ब्रैकेट, देन यू आर आउटसाइड द फर्स्ट ब्रैकेट, देन यू गेट दिस पूरा का पूरा आंसर. बोलो, गेटिंग इट? इट्स जस्ट अबाउट गिविंग अ लिटिल टाइम टू दिस. बोलो, समझ में आया? कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करिएगा एंड देखिएगा कि आर यू गेटिंग द सेम आंसर यूजिंग द PVFE बटन्स एंड यूजिंग दिस अप्रोच एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नेक्स्ट पोर्शन में. फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल सम, उसका फॉर्मूला किया हुआ हम लोग का, वी डोंट नीड दिस ओवर हियर. उसके बाद में जस्ट अंडरलाइन द टर्म फ्यूचर वैल्यू फैक्टर एंड फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर. डिड यू गेट दैट? एवरीबडी विथ मी? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो फ्यूचर वैल्यू फैक्टर में एक साथ कराऊंगा, 3-4 फैक्टर्स और आएंगे. आई विल डू इट आफ्टर दिस. कैलकुलेट द FV ऑफ अ 300 इन्वेस्टमेंट at the end of 10 years if it earns annual rate of 8%. बहुत ही सिंपल है. 300 into 1.08 to the power 10. 300 into 1.08 to the power 10, और कुछ नहीं है, फालतू क्वेश्चन है. अदरवाइज 300 को n PV, 10 is n and I by y is 8. Compute FV. Simple. Moving to the next one. I hope fast नहीं लग रहा है किसी को. Everybody is okay? Following, right? Alright. नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए डायरेक्टली, बीच का कुछ नहीं देखना होगा. क्वेश्चन में आइए. गिवन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 9%, कंप्यूट द PV ऑफ 1000 कैश फ्लो दैट विल बी रिसीव्ड इन 5 years. 5000 का कैश फ्लो यहां पे है, सॉरी 1000 का कैश फ्लो यहां पे है, उसका वैल्यू क्या होगा? 1000 by 1.09 to the power 5. इट्स एज सिंपल एज दैट. 1000 का यहां का वैल्यू मांग रहे हैं, 1000 by 1.09 to the power 5, या n equal to 5 डालो, 9 को I by y डालो, 5000 को सॉरी 1000 को FV डालो एंड देन कंप्यूट PV करो. ये ज्यादा लंबा पड़ता है. एन्युइटी के केस में वी विल यूज द PVPMT फंक्शंस, बट नॉर्मल PVFV में ना कैलकुलेशंस विद योर 1+R वाला कैलकुलेशन इज एक्चुअली इजियर. ये फॉलोइंग, जब खाली एक PVFV है तो 1+R वाला कैलकुलेशन इज इजियर, एंड जब अपने PMT एन्युइटी यूज कर रहे हैं उस समय अपने लोग का PVPMT FV फंक्शन बिकम्स इजियर टू यूज. सो यू हैव टू बी क्विक. आंसर्स आप निकाल लीजिएगा, प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा. एन्युइटी वी ऑलरेडी डन, ऑर्डिनरी एन्युइटी, एन्युइटी ड्यू, पूरा वो टेबल से कवर हो गया है. देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू डू इन द बुक नाउ, मतलब एटलीस्ट टिल हियर. क्वेश्चन देखो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी दैट पेज 150 पर ईयर. 150 क्या हुआ? PV, PMT, FV. PMT at the end of each year for the next 15 years. 15 is n and 7 is I by y. Compute FV. हो गया क्वेश्चन. There's nothing, you just need to practice. नेक्स्ट पार्ट में आइए. PV ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युइटी, उसमें वही 200 PMT है दैट पेज 200 पर ईयर फॉर 13 years, तो 13n हो गया, एंड 6% डिस्काउंट रेट है तो y by y हो गया. कंप्यूट PV, लास्ट क्वेश्चन में कंप्यूट FV किए थे. आई होप यू गाइज आर फाइन. आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट सो दैट यू अंडरस्टैंड कि सब कवर्ड है. नेक्स्ट पोर्शन.
What is the present value of 400 end of the year payments if the first payment is to be received 3 years from today? एक बार ये कैलकुलेट ट्राई करिए, बुक का सम मत देखिए, ट्राई करिए, आई एम डूइंग इट. बिना सोल्यूशन देखे ट्राई करो क्विकली. इजी सम है ये भी. What is the present value of $400 end of year payments? 4 payments होगा $100 का. If the first payment is to be received 3 years from today. First payment कब होगा? टाइम 2 पे, 3 पे, 4 पे, किस पे? It's saying that the first payment is to be received 3 years from today. That is going to be this time period. और आपको यहाँ 100 मिल रहा है और बोल रहा है कि $400 का पेमेंट है. तो 3, 4, 5 and 6 पे you've received this. इसका प्रेजेंट वैल्यू मांग रहा है. What I will do is n is equal to 4, PMT is equal to 100, I by y रेट कितना दिया हुआ है 9%, कंप्यूट PV. आंसर इससे आ जाएगा कि कुछ और करना पड़ेगा? और करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इसको कितना से डिवाइड करना है? 1.09. दैट इज इनकरेक्ट. ये वाला का प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो यहां पे आएगा ना, when you put n equals to 4, PMT 100, I by y 9. Of course we are using the ending mode. When you calculate PV, the PV is calculated at this time period. So this divided by 1.09 square is equal to your answer. You cannot make this mistake. इसलिए बोल रहा हूँ starting with in particular, since you're starting off with your curriculum, please make timelines and do all the questions. जरूरत है नहीं है doesn't matter. बहुत गलती होता है. Trust me. Use all the you make a timeline and do the questions. With I mean with a lot of interaction with students, with looking at what mistakes people make, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ. Be it working professionals, be it students, doesn't matter. पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट की तरह ही करना पड़ेगा. मैं भी अभी भी पढ़ रहा हूँ. So we are still studying. So you need to continual basis पे पढ़ाई को पढ़ाई की तरह ही करना पड़ेगा. कोई उपाय नहीं है. And you'll enjoy studying. Get into the study mode. This has to be. You have to draw timelines and do the questions now. ये इसका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा, जब अपना कैश फ्लो 1, 2, 3, 4 पे था तो पीवी 0 पे आ रहा है, तो कैश फ्लो 3, 4, 5, 6 पे आएगा तो पीवी 2 पे आएगा ना. जब कैश फ्लोज 1, 2, 3, 4 पे रख रहे थे तो पीवी 0 पे निकलता था, राइट? सो योर प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलवेज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लोज ऑफ द फ्यूचर, राइट? अपने अगर आज कोई कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, इफ यू आर परचेजिंग द शेयर्स ऑफ अ कंपनी टुडे, आज का डिविडेंड वो शेयर प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होता है. फ्यूचर डिविडेंड्स शेयर प्राइस में इंक्लूडेड होते हैं. बिकॉज आज अगर कोई कंपनी, इफ यू आर बाइंग अ शेयर टुडे, द फ्यूचर डिविडेंड्स विल बी रिसीव बाय द पर्सन हु इज गोइंग टू परचेज द शेयर टुडे. आज जो कंपनी डिविडेंड दिया है वो तो जिसके पास आज शेयर था उसको मिल चुका. सो कोई भी चीज का वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज. कोई भी चीज का वैल्यू इज गोइंग टू बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज. यू हैव 100, 100, 100. इसका प्रेजेंट वैल्यू टाइम 2 पे निकल के आ रहा है. इसको अगर डिस्काउंट करके यहां लेके जाना है तो 2 बार ही डिस्काउंट करना पड़ेगा 1 + r स्क्वायर से. नाउ सम पीपल वर सेइंग व्हिच वाज करेक्ट. आप बोल रहे थे इसको अभी एफवी लेने का एंड फिर पीवी निकालने का. डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी इरिटेटिंग? इसको एफवी डालना पड़ेगा, कुछ को 0 करना पड़ेगा अगर कुछ और डेटा होगा. देन यू हैव टू कंप्यूट पीवी. इट बिकम्स अ लिटिल अनोइंग. कंप्यूट पीवी डिवाइडेड बाय, एंड इनफैक्ट ब्रैकेट भी नहीं लगेगा बिकॉज स्क्वायर का बटन है कैलकुलेटर पे, राइट? डिवाइडेड बाय 1.09. स्क्वायर करोगे ना तो स्क्रीन पे जो है उसका स्क्वायर होता है. आई टोल्ड यू ना 1/x स्क्वायर स्क्वायर रूट इज गोइंग टू बी डन, इज गोइंग टू बी परफॉर्म्ड ऑन द नंबर दैट इज अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन. is going to appear on the number that is going to be performed on the number that is appearing on the screen. बोलो, following? So 1.09 स्क्वायर से जब डिवाइड कर रहे हो, so this amount जो भी PV आया, you don't have to type it again on the calculator. Immediately I continue divide by 1.09, स्क्वायर बटन प्रेस किया, equals to, and आंसर आ गया. चेक करो बुक का आंसर के साथ मैच कर रहा है कि नहीं अपना, राइट? एंड नाउ व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, सपोज अगर ये क्वेश्चन है तो आपको ये सोल्यूशन बुक में ही एग्जाम्पल के साइड में रखना चाहिए, एंड यू नीड टू कैंसिल ऑफ द सोल्यूशन इन द बुक. वो लोग लंबा चौड़ा मेथड से जो भी करेगा विल नॉट बॉदर. यही सोल्यूशन आपको बनाना है एंड बाकी का पोर्शन को कैंसिल ऑफ कर देना है. हाँ, टेल मी. If we were to calculate using FV, we'll put that as FV. I by Y चेंज करने का जरूरत नहीं है.
n को ओवरराइट करके 2 करना पड़ेगा. Sorry? Ajay, you want to calculate FV? Then 1.09 to the power 6, you can divide. Yes, correct. N 4 ही रहेगा ना? N 4 ही रहेगा ना? Because normal, समझो, इसको भूल जाओ एक बार कि ये टाइमलाइन में ये है. कैलकुलेटर को थोड़ी पता है कि टाइमलाइन में 2 3 4 5 है कि 0 1 2 3 है. कैलकुलेटर डज नॉट नो. कैलकुलेटर में अगर आप n इक्वल्स टू 4 डालोगे तो 4 टाइम्स 100 आएगा. PV मांगोगे यहाँ आंसर आएगा, FV मांगोगे यहाँ आंसर आएगा. Why will you add 100? वो एन्युटी ड्यू में था. So understand why and where would you add 100 if you have to? टाइमलाइन बना के देखो ना. अगर नॉर्मल एन्युटी का सम है, if I'm not using the BGN mode, the present value will get calculated over here, the future value will get calculated over here. I hope I'm not confusing you more. Suppose अपने BGN mode यूज करते हैं. Suppose एक बार के लिए assume करो कि आप BGN mode यूज कर रहे हो. Guys, concentrate. Suppose I'm using a BGN mode just for the heck of it. करना नहीं तो अपना जो आंसर आएगा इन चारों का PV अगर निकालोगे तो वो आंसर यहां पे आएगा. If you use a BGN mode and calculate PV, then your present value turns up over here because BGN mode will treat as if it is 0, 1, 2, 3 and 4, right? So then when you discount, you have to discount it 3 times. And अगर BGN mode use करके FV निकालोगे तो FV यहाँ आएगा. So then when you have to discount, you'll have to discount it 7 times. So starting में BGN mode use करके भी आंसर निकालने का ट्राई करो. इसी से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. You're understanding, visualize कि BGN मोड यूज करते तो PV यहाँ आता, तो यहाँ का वैल्यू को यहाँ लेके आना है तो 3 टाइम्स डिस्काउंट करना है. एंडिंग वैल्यू यूज करे तो PV यहाँ आ रहा है, तो यहाँ का वैल्यू को यहाँ लेके आना है तो 2 टाइम्स डिस्काउंट करना है. बोलो, मेकिंग सेंस और नॉट? राइट? हाँ बोलो. तो मेरे को तो यहाँ पे आंसर निकालना है, मेरे को तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए. पहले सर 6 पे लेके गए उसके. इफ इट इज एन एंडिंग मोड, योर आंसर विल बी ओवर हियर. If it is a BGN mode, your FV will be calculated at time 7. No sir, I was saying that if we'll start from here, we'll put n equal to 3. n equals to 3 क्यों डालेंगे? Okay, now n equals to 3 डालना है किसी को. So now when you put n equals to 3, suppose अपने ending mode use करें. Guys, concentrate. If you are using ending mode, you use n equals to 3, तो आपका इसका आंसर यहाँ पे आएगा. इसको 100 करो, इस वैल्यू को अगेन डिवाइड बाय 1 प्लस आर क्यूब करो. इतना मेहनत क्यों करेंगे? मतलब यू कांट जबरदस्ती अप्लाई करना है कर लो, बट इट इज गोइंग टू इंक्रीज माय नंबर ऑफ स्टेप्स ना. सर जब FB निकाल रहे हैं सर, मान लीजिए 60th पे ले जाके FB निकाल रहे हैं वहां पर 60th पे, FV 6th ईयर पे आप नहीं निकाल रहे हैं. इफ यू आर यूजिंग द एंडिंग मोड, योर FV विल कम एट टाइम 6. इफ यू आर यूजिंग द BGN मोड, योर FV विल टर्न अप एट 7. यू आर नॉट कैलकुलेटिंग ऑन एनी टाइम. यू अंडरस्टैंडिंग? आपका मर्जी से आप नहीं निकाल रहे हो. If you are using the ending mode, FV will give you the value of these hundreds as on this date. If you are using the BGN mode, ये hundreds का future value time 7 पे जो होगा वो FV आंसर आपको देगा. अब आपको क्या चाहिए वो आप सोचो. You are not calculating कि मेरे को FV इस दिन पे चाहिए. अपना FV थोड़ी कुछ होता है. कैलकुलेटर पे जब अपने यूज कर रहे हैं, when you are using the ending mode, the FV will be given as on this date. Calculator will give you 100 plus 100 into 1 plus R cube, 1 plus R square, 1 plus R and 100. If you are using a BGN mode, 100 into 1 plus R to the power 4, 3, 2, 1, you will get the FV over here. Now, आपको क्या निकालना है आप खुद सोचो, and उसके हिसाब से you do the discounting. I want the value over here, so if I get the answer over here, I have to bring it over here. And if I'm getting the answer over here, I'll have to still bring it over here. You have to see what you want. Calculator will give you from on the basis of उसका function. आप ending mode, beginning mode जो भी use करोगे, उसका जो भी function होगा, calculator उसके accordingly answer देगा आपको. What you want, you'll have to find out. We are inputting PMT is equal to 100. PMT 100. PMT 100 and बाकी सब same. Then we are getting PV minus 1032. 1032 माइनस नहीं आएगा, कुछ गलत किया है. But when we are putting it as minus $100, then we are getting the right answer over here. You've done some mistake. You've not cleared TVM and then you've done the calculation. आपका कुछ और गलती है. I'll come back to it later. Anyways, opposite signs वाला part was covered yesterday. Let's move forward एक बार. Okay, next question देखिए. Next question देखिए. A bond will make coupon interest payments of 70 euros at the end of each year and will also pay its face value 1000 euros at maturity in 5 years. If the appropriate discount rate is 8%, what is the present value of the bond's promised cash flows? So now I need to discuss a little bit about bond over here.
हम लोग नॉर्मली क्लास 11-12 में जो स्कूल में एंड कॉलेज में जो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, वी जनरली कॉल इट डिबेंचर्स. डिबेंचर्स या बॉन्ड्स क्या होता है? बॉन्ड्स डिबेंचर्स वील यूज इट सिनोनिमसली फॉर द टाइम बीइंग. बॉन्ड्स डिबेंचर्स क्या होता है? अपने सपोज 100 का बॉन्ड, 150 का बॉन्ड अपने जनरली 100 लेते थे. सपोज आई एम परचेजिंग अ बॉन्ड वर्थ 110 और आई एम परचेजिंग अ बॉन्ड. कंपनी मेरे को, एंड सपोज आई एम परचेजिंग अ 10 ईयर बॉन्ड. कंपनी मेरे को 10 ईयर्स तक उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा, जो भी फिक्स रेट होगा इंटरेस्ट का डिबेंचर का. 14% डिबेंचर होता था, तो 14% डिबेंचर मतलब आई विल गेट 14 एवरी ईयर टिल 10 ईयर्स. और 10 ईयर्स मैच्योरिटी पे मेरे को जो बॉन्ड का फेस वैल्यू होता था, आई यूज टू गेट दैट, आई गेट दैट बैक, 100 वापस मिल जाएगा. Now we, instead of using the terminology debenture, we are going to use the word bond over here. So we are looking at the corporate bonds, company का bonds and all over here. ठीक है? अच्छा, अभी bonds को just a second. Now, when I'm looking at a bond over here, a bond will make coupon payments of 70 or 7% of its face value. फेस वैल्यू बेसिकली क्या होता था ना, पहले डीमैट अकाउंट नहीं होते थे. पहले डीमैट अकाउंट मतलब अपने लोग जैसे NEFT में करके एंड ऑनलाइन सारा फंड्स एंड ऑल ट्रांसफर कर लेते हैं. पहले शेयर्स का सर्टिफिकेट्स होता था एंड यू हैड टू ट्रांसफर सर्टिफिकेट्स इन दी मटीरियल फॉर्म. उसको डीमटीरियलाइज किया गया एंड नाउ ऑल आवर शेयर्स, ऑल आवर बैलेंसेस एंड एवरीथिंग इज देयर ऑन दी डीमैट अकाउंट. यू कैन ट्रांसफर शेयर्स, यू कैन बाय सेल शेयर्स, ऑटोमेटिकली ऑनलाइन सारा ट्रांसफर हो जाता है. Okay, so there used to be the face value of the security. Let's say $1,000 का bond. We are going to stick to face value $1,000 assume करेंगे most cases में, because that is a normal denomination. तो $1,000 का face value and example में ना options, exam में options देख लेना. 99 का value 98 टाइप का value दे रहा है, मतलब 100 face value लिया होगा. 994, 984, 923 मतलब 1000 face value use करके sum किया हुआ है. So उससे you will understand that will not be a problem. So face value is 100,000. That is a face value. You calculate the coupon rate on the face value. Now, what do you understand by coupon rate, or what do you understand by the interest rate वाला part? Now, when I'm looking at, let's say, इसमें कितना years का bond दिया है? 5 years का bond दिया है. Time 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So, I'm looking at a 5-year bond over here. 5 years bond मतलब 5 years maturity है, उसके ऊपर आपको पैसा वापस मिल जाएगा. Technically, when you are purchasing a bond, it is as if you are giving a loan to the company. We are giving a loan to the company when we are purchasing the bond. Company हम लोग के ऊपर favor नहीं कर रहा है, हम लोग company के ऊपर favor कर रहे हैं. It's you know, I see students getting confused over here. We are the ones who are giving loan to the company when we are purchasing the bonds. अपने 1000 दे रहे हैं कंपनी को, अपने आज अगर लोन कंपनी को देंगे तो कंपनी supposed to give back the loan amount at maturity. So that 1000 face value, we'll assume we will be getting our loan amount back of 1000 over here. Company is supposed to be paying interest on the borrowed amount, obviously. अब उसको interest बोलना ना थोड़ा सा गलत हो जाता है. We don't use the term interest. Now understand, आज कंपनी ने आपको डिबेंचर दिया, बॉन्ड इशू किया. So you have the bonds or debentures today. Now bonds and debentures पे suppose the company issued 10% debentures to you. यहाँ पे कितना है? 7% debentures to you. 7% का bond company आपको issue किया. You will get a 7% rate constant over here कि अलग अलग rate मिलेगा? 7% constant मिलेगा. इंटरेस्ट रेट जो होता है मार्केट में, डोंट यू थिंक दैट कीप्स ऑन चेंजिंग? आज आरबीआई का पॉलिसी आता है, आरबीआई कुछ अनाउंसमेंट करता है, सेंट्रल बैंक कोई भी अनाउंसमेंट करेगा, योर इंटरेस्ट रेट विल कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. Interest rates are going to keep on fluctuating on a regular basis. So interest rate बोलना थोड़ा सा गलत हो जा रहा है. We are getting a fixed rate of something, उसको interest बोलना थोड़ा गलत हो रहा है. We call it a coupon rate. Coupon rate क्यों बोलते हैं? Because पहले क्या होता था, क्या dematerialized form में bonds मिलता था हम लोग को. Suppose it's a 5-year bond, you will get 5 coupons right now only. आप एक एक कूपन दे दो और एक एक इंटरेस्ट लेते जाओ every year जा करके. So that is why, और ये पहले से काफी पहले से we are using this terminology and we continue using that. So इसको ना interest बोलना थोड़ा गलत होगा. Interest में भी there will be 5-7 terms we'll discuss. धीरे धीरे आएगा सब चीज, right? So we call it coupon. जो fixed rate of interest आपको मिलता है उसको हम लोग coupon rate बोलते हैं. And the coupon rate is always going to be calculated on the future value, on the face value. The coupon rate is always going to be calculated on the face value. So 7% अगर कूपन रेट है तो 1000 फेस वैल्यू, कूपन रेट, कूपन अमाउंट मतलब डॉलर टर्म्स में इज कूपन रेट इनटू फेस वैल्यू.
So 1000 into 7% gives you 70. So I'll get a 70, 70, 70, 70 and 70 over here. On a regular basis, I'm going to be getting 70. That is the bonds cash flow. यहाँ पर actually question में इन लोगों ने properly mention नहीं किया है. Normally what happens is, normally the bonds are going to be paying coupons on a semi-annual basis. Question, I think it's mentioning it will make 70 euros at the end of each year. Question बोल दिया है कि coupon every year 7% मिलेगा. अगर question कुछ mention नहीं करता, suppose a question would have said that the bond pays 7% coupon. हम लोग को assume करना पड़ता that you will get 35, 35, 35, 35 every 6 months for 5 years period. If question does not specify anything, मैं लिखवाऊंगा बाद में bond के sums आएंगे आगे, we'll do all that. If the question does not specify anything, we will have to assume that the bonds pay coupons on a semi-annual basis. Because in all cases, in most of the cases, US may and generally, even in India if you see, generally companies pay interest on a semi-annual basis. Because they pay interest on a semi-annual basis, we assume semi-annual rate if the question is silent. So if the question is silent, we will assume semi-annual coupon. But this question is categorically telling you कि 70 is paid at the end of each year. तो उसमें अपने लोग को कुछ करना नहीं है. अगर बोल दिया annual coupon है तो you don't have to do anything. So 70, 70, 70, 70, 70 is the cash flow and 1000 is the cash flow. आपको बोल रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना है अभी 8% चल रहा है. ये इंटरेस्ट रेट हुआ, मार्केट में इंटरेस्ट रेट अभी 8% चल रहा है. दिस इज व्हाट द इंटरेस्ट रेट इज ऑल अबाउट. 8% is the current rate of return, current rate of interest in the market for these kind of debentures, for these kind of bonds. So the market rate is right now 8%. कोई भी चीज का वैल्यू, be it fixed income, equity, private equity, whatever we study for in future, कोई भी चीज का वैल्यू is equal to present value of future cash flows. आप कोई भी चीज के लिए क्या देने को रेडी हो जाएंगे? आपको बदले में जो मिलेगा उसके हिसाब से you'll pay ना. I'm paying 25,000 if I want a gold coin. Gold coin is worth 25,000. आप जो देते हैं आपको उसी के अकॉर्डिंगली मिलेगा, right? If I'm going to get 70, 70, 70, 70, 70 and 1000, I will be willing to pay इसी का equivalent amount. और इसका equivalent amount कैसे होगा? 70 today is not equal to 70 after 1 year. So I need to bring all these cash flows का value as on date, and that should be the value I should be willing to pay for the bond. And आपका required return कितना है? Based on the bond का riskiness, your return is 8%. That is mentioned in the question. कि for this kind of a bond, for this kind of a debenture, for this kind of a security, I should be demanding an 8% kind of return. तो 8% के हिसाब से I should be discounting all these cash flows. Agreed, everybody? तो bond का valuation. So is bond का value as on this date is equal to 70 by 1 plus r plus 70 by 1 plus r square plus 70 by 1 plus r cube plus 70 by 1 plus r to the power 4 plus 1000 plus 70 by 1 plus r to the power 5. R, of course, we need to take it at 8% over here. That is going to give me the bond valuation. So the bond value is equal to 70, 70, 70 and last में 1070 का present value. The present value of the future cash flows is going to give you the bond valuation. 9% यहाँ पे R डालेंगे अपना आंसर आ जाएगा. Of course हम लोग इस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करके आंसर नहीं निकालेंगे. We would be able to do it using the PVPMT approach. I'll ask you one question, ध्यान से बताना. So अपना N is equal to 5 years. 9% बोला है, that is your I by Y. Sorry, 8% बोला, 8% is your I by Y. That is your I by Y. अच्छा, 70 is going to be your PMT. FV कितना होगा? 1000 की 1070? 1070? 1000 होगा. Understand? Here is, ये सब जगह गलती होता है. आपको maturity पे 1070 मिल रहा है. Agreed. But try to understand, FV is not future face value, it is future value when you're looking at the calculator. When you're looking at the calculator, your FV stands for future value. जब आपने n equals to 5 and PMT 70 बोला ना, तो कैलकुलेटर ने ऑलरेडी 70 को 5 टाइम्स कर दिया है. When you enter n equals to 5 and PMT equals to 70, calculators already made 70 को 5 टाइम्स. जो फ्यूचर वैल्यू है दैट इज मैच्योरिटी पे आपको क्या मिल रहा है, दैट इज n के जो एंडिंग वाला पार्ट है, n जहां खत्म हो रहा है वहां पे आपको क्या मिल रहा है, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू. So the future value over here is 1000 because 70 has already been counted in PMT. So don't make that mistake. So 1000 is going to be your FV over here and all we need to do is compute PV.
नाउ वन मोर थिंग, 70 आपको मिल रहा है कि आपको देना पड़ रहा है? मिल रहा है। 1000 आपको मिल रहा है कि देना पड़ रहा है? मिल रहा है। तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए कि ऑपोजिट होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, योर पीएमटी एंड एफवी विल बी ऑफ पॉजिटिव साइन, एंड पीवी जो अपने आंसर निकालेंगे ना इसमें कैलकुलेटर में, वो नेगेटिव आएगा, बिकॉज वो अपने को देना पड़ेगा आज। इफ यू वांट टू गेट 70 70 70 एंड लास्ट में 1000। रिवर्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी को आज मिलेगा ये, उसके लिए यही कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, बट कंपनी विल हैव टू पे 70 70 70 एंड लास्ट में 1000। इट डजंट मैटर आप किसको पॉजिटिव डाल रहे हो, किसको नेगेटिव डाल रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर पुटिंग दीज टू एज वन साइन एंड दिस वन ऑफ द ऑपोजिट साइन। इट डजंट मैटर अपने 1000 और 70 को प्लस डाले या दोनों को माइनस डाले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने को तो पता ही है ना कौन सा आउटफ्लो है कौन सा इनफ्लो, अपने को तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने से मतलब है। पॉजिटिव में आए नेगेटिव में आए, डजंट मैटर। यू अंडरस्टैंडिंग? व्हाट मैटर्स इज दैट इन दोनों का साइन सेम होना चाहिए। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मैं टाइम दूंगा कॉपी करने का, कॉन्सेंट्रेट करो। सपोज आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन दैट बॉन्ड का वैल्यू इज, आई हैव गिवन यू सम वैल्यू, लेट्स इसका आंसर निकाल लो नहीं तो एक बार कैलकुलेटर पे। 960.07. So 960.07 is your bond value. Suppose I give you a question that the bond is priced at 960.07, उसका फ्यूचर वैल्यू 1000 है, 5 ईयर का बॉन्ड है, कूपन रेट बताओ कितना होगा? In that case, when you are putting it in PV and FV, आपको opposite sign डालना पड़ेगा। You're understanding the importance of this part? अगर अपने को देखो बाकी केस में तो आप लोग को माइनस के लिए बॉदर नहीं करना पड़ रहा है, बिकॉज बिंदा सम में डाल रहे हो एंड आंसर निकाल ले रहे हो, करेक्ट। बट इन केस आई गिव यू द पीवी एंड एफवी एंड यू नीड टू कैलकुलेट पीएमटी, आपको पीवी और एफवी को अलग अलग साइन डालना ही पड़ेगा, वरना आंसर गलत आ जाएगा एंड एट टाइम्स आंसर आएगा ही नहीं। You have to put this one and this one as the opposite sign, because if you are an investor, outflow, inflow. If you are the company, inflow, outflow. You have to give it of the opposite sign, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरा चीज, सपोज मैं आपको सारा डेटा दे देता हूं एंड आई आस्क यू कि व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट इन द मार्केट, ये बताओ। आई बाय वाई कंप्यूट करने को दे देता हूं। देखो कैलकुलेटर में अपने पास पीवी, पीएमटी, एफवी एंड आई बाय वाई 5 बटन्स है, उसमें से कोई भी 3 या 4 आपको दूंगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट द 5th वन। पॉसिबल? कैलकुलेटर में तो जो डेटा दिया हुआ उसको डाल दो, जो नहीं पता है उसको बैक कैलकुलेट कर लो, कंप्यूट कर लो। Now if you want to compute I by Y, you put 960.07, 1070 in the calculator, it will show you an error. It will show you an error. Error दिखाएगा। कैसे error दिखाएगा समझा रहा हूं। आप क्या बोल रहे हो कैलकुलेटर को, लाइक बॉन्ड वैल्यू को इस साइड डालूंगा, दिस इज इक्वल टू दिस, राइट? इफ यू आर पुटिंग एवरीथिंग एज पॉजिटिव, बेसिकली दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये माइनस होगा। अगर आप सब चीज पॉजिटिव कर रहे हो ना, बेसिकली व्हाट द कैलकुलेटर इज अंडरस्टैंडिंग, यू आर सेइंग 960.07 प्लस 70 by 1 plus r, 70 by 1 plus r square, 1070 by 1 plus r to the power 5 is equal to 0. You want to equate this. ये इक्वेट हो ही नहीं सकता, इक्वेशन आई बाय वाई निकलेगा ही नहीं। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अगर वो ऑपोजिट साइंस नहीं दिखाओगे, मतलब आई विल इन्वेस्ट इतना एंड देन फ्यूचर में आई विल गिव इतना, तो रिटर्न कहां से हो? तो रिटर्न आया कहां से? टुडे ऑल्सो यू आर पेइंग, फ्यूचर ऑल्सो यू आर पेइंग, वेयर विल द रिटर्न कम फ्रॉम? रिटर्न तो तभी आएगा ना जब मेरा एक पेएबल अमाउंट है, मेरे को फ्यूचर में कुछ मिलेगा, तभी तो उसको इक्वेट करके रिटर्न निकालोगे। अपने 100 डालेंगे, 120 मिलेगा, तो 20% रिटर्न आएगा ना। अगर आप बोल रहे हो कि मैं 100 आज दूंगा एंड 120 एक साल बाद दूंगा, तो रिटर्न कैसे निकलेगा उसमें? व्हाट इज द रिटर्न इन दैट केस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? इफ आई गिव यू 100, आई गेट 120, आई से 20% इज द रिटर्न। बट इफ आई गिव यू 100 टुडे एंड इफ आई गिव यू 120 आफ्टर 1 year, where is the return? Where will the return get calculated? Calculator is going to show an error. So you have to enter the cash flows with the opposite signs. All the inflows in one sign and all the outflows in another sign. That you have to do. समझ में आ रहा है लॉजिक? बहुत सिंपल है, बहुत कॉमन सेंस वाला चीज है। फाइनेंस इज टोटल कॉमन सेंस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा, आई नो आप लोगों को फेस देख के लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा टू गेट इन द मोड ऑफ इट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और मैथ्स वाला काम है, देखो सम होता है तो मजा आता है, सम नहीं होता है तो मजा नहीं आता है। एंड पूरा CFA, पूरा फाइनेंस इज नॉट मैथ्स, इट्स जस्ट दैट वी हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक कैलकुलेशन, क्योंकि मनी रिलेटेड कैलकुलेशन नहीं आएगा तो आगे करने में, पढ़ाई करने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, दे आर इंटर रिलेटेड, बट देयर इज नॉट सो मच ऑफ न्यूमेरिकल, सो डोंट गेट स्कैर्ड अबाउट इट, एंड इट इज वेरी कॉमन सेंस टाइप का मैथ्स। बोलो एवरीबडी कंफर्टेबल टिल हियर? अभी बोलिए क्या प्रॉब्लम है? सॉर्टेड?
So that is, you compute PV, you get a value of the bond at 960.07. बोलो, agreed everyone? यहां तक कोई प्रॉब्लम? Anyone any issue so far? बुक का आंसर आ रहा है? आ रहा है। और बुक का देखो आधा पेज का सोल्यूशन दिया है। अपना सोल्यूशन क्या है? एन एफ वी पी एम टी आई बाय वाई डाला एंड पीवी निकाला। गाइस 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 एक सेकंड, व्हेन यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन, व्हेन यू स्टार्ट गाइस, when you start reading this question, the moment you do that, interest payment of 70 दिखा रहा है, 70 पे PMT लिख लो क्वेश्चन में। एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर पे ही पूरा रफ वर्क करना है। उसके बाद में आगे एट द एंड ऑफ ईच ईयर फेस वैल्यू 1000, उसके ऊपर ही एफ लिख लो, 5 के ऊपर एन लिख लो, डिस्काउंट रेट 8 के ऊपर आई बाय वाई लिख लो, एंड आंसर में कंप्यूट पीवी आंसर, पूरा सोल्यूशन काट सकते हो ना। एग्जाम के टाइम थोड़ी रिवाइज करेंगे ये सब। क्वेश्चन में आपको एन आई बाय वाई पीवी एफ वी और पीएमटी मिल गया, कंप्यूट पीवी इज द आंसर, यू डोंट हैव टू रिवाइज द होल थिंग। बोलो, इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल टिल हियर? आई एम कमिंग टू यू। सपोज अगर ये बॉन्ड सेमी एनुअल कूपन पेड होता, सपोज दिस बॉन्ड इज सपोज टू बी मेकिंग अ पेमेंट ऑन अ सेमी एनुअल बेसिस, व्हाट एडजस्टमेंट वी हैड टू मेक? सेमी एनुअल होता, पीएमटी 35 लेते अपने, 7% कूपन तो एनुअल हुआ, तो आपको 6 मंथ्स पे देंगे, तो 35 करके देंगे। N will be 10 and I by Y would be 4. Absolutely correct. And then you compute PV. I by Y would be 4 and you compute PV. Absolutely. अच्छा, एक बात बताओ, इसका प्रेजेंट वैल्यू 1000 से कम क्यों आया है? या डिस्काउंट है, बट 1000 थोड़ी मिल रहा है फ्यूचर में, 1000 से ज्यादा मिल रहा है, 70 भी तो मिल रहा है। Why is the value of the bond coming at a lower price, at a price lower than 1000? Because you are paying an interest of 7%. Try to understand, ये 7% हुआ कूपन रेट। आपने आज बॉन्ड खरीद लिया, अब ये बॉन्ड आपको 70 ही देगा, irrespective of whatever happens in the market. सपोज ये 5 ईयर बॉन्ड नहीं था, ये 8 ईयर्स बॉन्ड था, जो 3 ईयर्स पहले इशू किया था। This was an 8-year bond. Suppose, I'm just giving a hypothetical situation. This was an 8-year bond which was issued 3 years back. तो आज के दिन अगर इस बॉन्ड का बात करोगे तो 5 कैश फ्लोज बचे हैं, क्योंकि 3 साल खत्म हो गया, 8 ईयर बॉन्ड था, तो अभी तो बचा हुआ 70,000 है। जब बॉन्ड इशू हुआ था ना, तब 7% ही मार्केट में रेट चल रहा था, तो उसके हिसाब से आप कंपनी ने आपसे 1000 लिया और कंपनी ने आपको बोला कि मैं आपको 7% रेट करके दूंगा, क्योंकि मार्केट आपको 7 पे कर रहा है, बिकॉज मार्केट इंटरेस्ट रेट इज 7%. Now, after 3 years, the market में interest rates have changed to 8%. Now you understand we can call this as interest rate, but we will not call this as interest rate anymore. This is coupon rate, not interest rate always. So ये अपना interest rate market में 8% चल रहा है. अभी एक बात बताओ, आपको suppose ये bond sell करने का मन है, कोई भी बंदा अगर मार्केट में 1000 देता है तो उसको 80 करके 8% का इंटरेस्ट रेट मिलता है. Will anybody purchase this bond from you which is going to pay 70? Nobody is going to purchase this bond from you at 1000. जब मैं मार्केट में 1000, मार्केट में इंटरेस्ट रेट इज रनिंग एट 8%. मतलब क्या? 1000 दोगे 80 मिलेगा, 100 दोगे 8 मिलेगा, 1 दोगे 0.08 मिलेगा. That is what it means, right? So when the market rate is 8%, why would I invest in you? Why would I take your bond at 1000? I wouldn't. मैं तब आपका बॉन्ड खरीदूंगा जब वो प्राइस पे आई विल पे अ लोअर अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज 960 पे 8% कैलकुलेट करोगे तो 70 आएगा. 960 पे 8% इज नॉट 70. 70 and 1070 all taken together for all the 5 years discounted at 8% is going to give you 960.07. इसके बारे में ना आज ही इसी चैप्टर के एंड पे कराऊंगा ये वाला पार्ट. It will be very clear after that. But basically I would demand an 8% return. And this bond is going to give you 70 and लास्ट में 1000. वो चेंज नहीं हो रहा है, बिकॉज आपने जब कंपनी ने बॉन्ड इशू किया था मार्केट में रेट 7% चल रहा था. कंपनी इशूड 7% डिबेंचर्स इन द मार्केट. वो 7% चेंज नहीं होगा, वो 7% चेंज नहीं होगा. तो यू आर गोइंग टू गेट दीज कैश फ्लोज. सो दीज कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट द करंट मार्केट रेट जो आएगा, उसके ऊपर सामने वाला आपसे बॉन्ड खरीदने को रेडी हो जाएगा. You are discounting 7% के कैश फ्लोज को हायर 8% के रेट पे. ऑफ कोर्स आंसर विल बी लेस देन 1000. अगर इसमें 7 डालोगे ना आई बाय वाई को, आंसर 1000 आएगा. अगर 7% डालोगे तो आंसर 1000 आएगा. जस्ट होल्ड दिस थॉट, आई विल डू दिस पार्ट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. मेरा एक कंटेंट है एमोटाइजेशन शेड्यूल, उससे क्लियर कर दूंगा ये वाला पार्ट.
जस्ट होल्ड दिस थॉट. बट व्हाट आई एम सेइंग इज 7% अगर रेट है, 7% के कैश फ्लोज को 7% पे डिस्काउंट करोगे तो आंसर 1000 आता. 7% के कैश फ्लोज को हायर डिनोमिनेटर से डिस्काउंट करोगे तो आंसर 1000 से कम आएगा. एंड अगर 7% से कमती रेट से डिस्काउंट करते कैश फ्लोज को तो आंसर 1000 से ज्यादा आता. बोलो, इज एवरीबडी कंफर्टेबल टिल हियर? ये इसका प्रूफ मैं करके दिखा रहा हूं थोड़ी देर में, जस्ट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर इटसेल्फ आई विल डू द प्रूफ. बोलो, यहां तक इज एवरीबडी कंफर्टेबल? अदरवाइज नेक्स्ट एग्जांपल में आइए. व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी दैट पेज $100 per year at the beginning of each of the next 3 years commencing today if the cash flows can be invested at an annual rate of 10%. ओके, वही टाइमलाइन बना के दिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, कर चुके अपने, एक बार बता दे रहा हूं. बुक में भी अगर आप देखोगे ना, देख लो, नहीं तो बुक में भी अगर आप देखोगे तो वही बोल रहा है. 0, 1, 2, 3 तीनों के बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बुक का टाइमलाइन एवरीवन 100, 100, 100 दिया हुआ है, देख रहे हो? इट्स अ 3 year एन्युइटी. द $100 इज गोइंग टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. You have 100, 100, 100 at 0, 1 and 2, but it is a 3 year annuity. 3 year annuity है, लेकिन पेमेंट साल के स्टार्टिंग में हो रहा है. जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होगा वो टाइम 3 पे ही होगा. जो फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट होगा वो टाइम 3 पे ही होगा. यू टेक n equals to 3, एंडिंग मोड यूज करके जब FV निकालोगे तो आंसर 2 पे आएगा. उसको अपने को 1 + 1.10 करके ले जाना पड़ेगा. और अगर BGN मोड का यूज करके आंसर करोगे तो आंसर डायरेक्टली 364 आ जाएगा, जो करेक्ट आंसर था FV का. यू कैन डू दिस सम. मैंने सेम सम किया था 4 years लेकर के. बोलो, एवरीबडी कंफर्टेबल? नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डू. इफ यू डिपॉजिट $1000 इन द बैंक टुडे एंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ द नेक्स्ट 3 years, हाउ मच विल यू हैव 6 years फ्रॉम टुडे एट 6% इंटरेस्ट रेट? देखो क्वेश्चन, देखो. You have a 6 year horizon. If you deposit $1000 in the bank today and at the beginning of each of the next 3 years, इसके अलावा each of the next 3 years, 1, 2, 3 साल के, and at the beginning of each of the next 3 years, समझ में आया? You are depositing 1000 today. इस साल का कोटा पूरा, first year is done. And at the beginning of each of the next 3 years, next 3 years कौन सा हो? Second, third and fourth. You are depositing $1000 at the beginning of this year, first year, and next 3 कौन सा हुआ? Second, third, fourth. उसके beginning में. So these are your cash flows. And question पूछ रहा है 6% रेट है, अभी बताओ 6 years के बाद में from today कितना पैसा जमा हो जाएगा? It is asking you the amount over here. देखो, एग्जाम में जब तक पहुंचोगे ना तब तक ये सब ऐसा लगेगा. I'm guaranteeing that to you. अभी समझो. So guys, so either 1000 into 1 + r to the power 6, 5, 4 and 3, that should be the answer. मतलब एकदम खराब केस में एकदम कंफ्यूज हो गए एग्जाम में तो ये तो कर ही सकते हो. 1000 into 1 + r to the power 6, 5, 4 and 3 and उसका टोटल, that will give you your answer. That is the worst possible method you could go for, but in like worst situation में कर तो सकते हो, आंसर तो निकल ही जाएगा. दूसरा तरीका, अपने बिगिनिंग मोड यूज नहीं करते प्लीज, एंडिंग मोड यूज करोगे. n equals to 4, I by y equals to 6, PMT equals to 1000. देखो, कंप्यूट FV करोगे तो नॉर्मल एन्युइटी में आंसर यहां आएगा इंटू 1.06 क्यूब आंसर. बी वेरी अटेंटिव, मैं सारा ऑल्टरनेटिव्स दे रहा हूं. एंडिंग मोड यूज करेंगे, FV निकालेंगे, इसको गोली मारो, क्योंकि एंडिंग मोड में तो कैलकुलेटर यही मानता है ना 0, 1, 2, 3, 4 है, उसको थोड़ी पता आप क्या कर रहे हो. तो आंसर FV का यहां आएगा इंटू 1.03 क्यूब 1, 2, 3 आंसर आ जाएगा. सपोज एंडिंग मोड यूज करके PV निकाला तो आंसर कहां पे आएगा? -1 पे. उसको 6 पे लेके जाना है तो आइदर यू कंप्यूट FV इंटू 1.1 क्यूब, यू कंप्यूट PV that will be -1 पे इंटू 1.10 to the power 7, आंसर सेम आएगा. BGN मोड अगर यूज करोगे, FV निकालोगे तो यहां आंसर आएगा, इंटू 1.1 स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा.
बीजीएन मोड यूज करके एफवी निकालोगे तो आंसर यहां आएगा। बीजीएन मोड यूज करके अगर एफवी निकालोगे तो आंसर यहां आता है, बिगिनिंग मोड। 4 ईयर एन्युइटी का फेस वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू विल ऑलवेज कम एट टाइम 4, तो उसको 1.106 स्क्वायर करोगे आंसर आ जाएगा। बीजीएन मोड यूज करके अगर पीवी निकालोगे तो उसको 1.06 टू द पावर 6 करोगे तो भी आंसर आएगा, सारा आंसर सेम आएगा ऑब्वियसली। एंडिंग मोड से पीवी यहां आ रहा है तो उसको 7 टर्म्स आगे डालने के लिए 1.06 टू द पावर 7। एंडिंग मोड से एफवी यहां आ रहा है तो उसको यहां लेके जाने के लिए 1.06 क्यूब। बिगिनिंग मोड से पीवी यहां आएगा तो उसको यहां ले जाने के लिए 1.066 टू द पावर 6। बिगिनिंग मोड पे एफवी यहां आएगा तो उसको यहां ले जाने के लिए 1.06 स्क्वायर। बोलो कोई प्रॉब्लम? दिस इज वेरी सिंपल। क्या मेथड फॉलो करना है वो आपका चॉइस है। आई वुड ऑलवेज गो फॉर एंडिंग मोड, एंड सिंस एफवी निकालना है तो मेरे को ये बेटर लग रहा है कि यहां पे आंसर निकलेगा इंटू 1.06 क्यूब कर दूंगा, दैट इज इजियर फॉर मी। यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड इस सम में क्या करना है। एंडिंग मोड बिगिनिंग मोड खाली समझ जाओ। एंडिंग मोड में पीवी यहां पे आता है, एफवी यहां पे आता है, लेट्स से 0 1 2 3, और बिगिनिंग मोड में पीवी यहां पे आता है एंड एफवी यहां पे आता है। दैट्स ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड। एंडिंग मोड यूज करते हो, कैश फ्लो 1 2 3 पे होता है, पीवी यहां 0 पे आएगा, एफवी यहां 3 पे आएगा। बिगिनिंग मोड जब यूज कर रहे हो, कैश फ्लो 0 1 2 पे होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 3 ईयर एन्युइटी इन बोथ केसेस। कैश फ्लो 0 1 2 पे होता है, पीवी 0 पे आता है, एफवी 3 पे आता है। बेसिक सा चीज है, इतना सा चीज समझ जाओगे, यू हैव टू अप्लाई। बोलिए कंफर्टेबल और नॉट टिल हियर? बोल। अच्छा 1.06 हो गया, वो गलती से बोल दिया होगा। 1.06 बोलो। फॉलोइंग दिस पार्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और इतना बड़ा बड़ा सम ये बुक से मत करिएगा ये सब। You find out your answer, you match it with the book and your book will give you the correct solution. Method देखने का अपने को मतलब नहीं है। बोलिए sorted till here or not? Everyone? Next question. I'll see if you are having a particular कुछ गड़बड़ आ रहा है तो देखना पड़ेगा। तो आपने खाली कंप्यूट एफई किया तो यहां पे आए हो, उसके बाद 1.06 वो करना बाकी होगा। You're making some mistake. We'll see that. Next question में आओ। Given a discount rate of 10%, what is the present value of a 3-year annuity that makes a series of $100 payment at the beginning of each of these 3 years? ये खुद कर लीजिएगा, आप छोड़ रहा हूं इसको। मैंने 4 के साथ सम कराया, इन लोग 3 के साथ दे रहा है। इसका पीवी निकालने बोल रहे हैं, कैसे करोगे? आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू सॉल्व अलोंग विथ मी। कल का याद कर लो। 100 प्लस 100 बाई 1 कितना रेट दिया है? 10%। 100 प्लस 100 बाई 1.10 प्लस 100 बाई 1.1 स्क्वायर, और n इक्वल्स टू 2 एंडिंग मोड पे पीवी निकालेंगे इसका प्लस 100, और n इक्वल्स टू 3 एंडिंग मोड पे पीवी निकालेंगे यहां पे एंड इनटू 1.10, और n equals to 3 BGN mode compute PV. That is the answer. We've done all the 4 methods yesterday. This is fine. 4 years को use करके। I'll move to the next question. I know I'm going fast, but book के questions practice करा रहा हूँ। घर पे आपको करना चाहिए था ये। Assume the preferred stock of Codon Corporation pays 4.5 per year in annual dividends and plans to follow this dividend policy forever. आज 4.5 दे रहे हैं और फ्यूचर में हमेशा हमेशा के लिए 4.5 ही देगा। रिक्वायर्ड रिटर्न 8% है, तो उसका प्रेफर्ड स्टॉक का वैल्यू क्या? 4.5 डिवाइड बाय 0.08, ए बाय आई, और कुछ नहीं किया इसमें। ए बाय आई, दैट्स इट। द वैल्यू इज इक्वल टू रेगुलर पेमेंट्स डिवाइडेड बाय द इंटरेस्ट रेट, राइट? 4.5 इज द डिविडेंड दैट यू आर गोइंग टू गेट फॉर इंफिनिटी, परपेचुइटी। उसका आज का वैल्यू क्या? कैसे आएगा? एक्स स्टॉक का अमाउंट था, उसका 8% करके देना चाहिए, एंड वो 4.5 दे रहे रेगुलरली, सो एक्स इज दिस आंसर। बोलो, गेटिंग इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, वो रेट ऑफ रिटर्न निकालने बोल रहा है।
75 शेयर प्राइस है एंड डिविडेंड अभी भी बोल रहा है 4.5 है, तो रिटर्न कितना 4.5 बाई 75। ए दे दिया, प्राइस दे दिया, आई निकालने बोल दिया, बिग डील। अनइवन कैश फ्लो सीरीज, अनइवन कैश फ्लो सीरीज का क्वेश्चन में आइए। नाउ आई विल टेल यू दे हैव डन समथिंग रियली इरिटेटिंग ओवर हियर। लिसन, क्वेश्चन में आपको एक कैश फ्लो स्ट्रीम दे दिया टाइम 0 1 2 3 4 5 6 का, एंड आपको कैश फ्लोज दे दिया यहां पे, ठीक है। उसके बाद में आपको पीवी निकालने बोला है। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, टाइमलाइन देखिए एक बार बुक का, -1000 -500 0 4000। पहले ऑप्शन में क्या बोलता है ना, -1000 को एफ लो, 1 एन डालो और पीवी निकालो। फिर -500 को एफ लो, n इक्वल्स टू 2 डालो, फिर पीवी निकालो। फिर 0 तो 0 ही है, 4000 को एफ लो, n इक्वल्स टू 4 लो, फिर पीवी निकालो। इंडिविजुअली 1 to 6 का कैश फ्लोज का पीवी निकाला है, फिर ऐड कर रहा है। उसके बाद में सोल्यूशन बोलता है अच्छा ये इससे बेटर मेथड कैश फ्लो मेथड यूज करना है, तो ऑब्वियसली you'll get annoyed like shit before you start off with the correct part। तो वो बहुत इरिटेट कर रहा है पहले वाला पार्ट। देखो ना फर्स्ट हाफ ऑफ द सोल्यूशन, they're giving you the present values first and then बोलता है कि summation of all the present values is the answer। then बोलता है नहीं अच्छा कैश फ्लो वाला मेथड यूज करते हैं, नहीं अच्छा पीवी भी निकाला, एफवी भी निकाला, उसके बाद कैश फ्लो मेथड नहीं आ रहा है। एंड देव गिवन यू द स्टेप्स ऑफ कैश फ्लो मेथड, प्लीज डोंट बॉदर अबाउट इट। अपने को पता है सीएफ में CF 0 1 2 3 4 एंटर करने का, एनपीवी में आई डालने का एंड एनपीवी निकालने का, दैट्स इट। उसको इफ यू रीड इट थ्रू द स्टेप्स इट गेट्स वेरी अनोइंग, सो लीव दैट पार्ट। यू फाइंड आउट द आंसर एंड यू सी इफ योर आंसर इज मैचिंग विद द बुक। नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फैसिलिटी आपके पास है ऑन द नॉन प्रोफेशनल वर्जन, उसको इंटू 1 + r to power n कर दो तो नेट फ्यूचर वैल्यू भी आ जाएगा ना। सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। सो यू डू द कैलकुलेशंस एंड यू मैच। जितने भी सम्स अपने आज भी किए हैं ना क्लास में, वो सारा घर पे करिएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा लगेगा। सो डू ऑल द सम्स, प्रैक्टिस ऑल द सम्स एंड जस्ट मैच इट विद द बुक का आंसर। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट द मेथड, राइट? ओके, उसके बाद में देयर इज अनदर एग्जांपल, द इफेक्ट ऑफ कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी ऑन एफवी एंड पीवी। दिख रहा है एवरीवन? आफ्टर द अनइवन वो कैश फ्लोज वाला पार्ट इज डन, effect of compounding on PV and FV. Can you see that? Everybody? उसके साइड में लिखो write this. जितना ज्यादा कंपाउंडिंग करेंगे इफेक्टिव एनुअल यील्ड विल इंक्रीज। याद करिए 1.12, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया 2 times a year 1.06 स्क्वायर, इट गेव यू 12.36% रिटर्न। यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी टू 4 times, इट गेव यू 1.03 to the power 4, दैट इज 12.55% रिटर्न। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग होगा उतना बार बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। सो योर फ्यूचर वैल्यू विल बी हायर बिकॉज कंपाउंडिंग ज्यादा, एंड प्रेजेंट वैल्यू विल बी लोअर बिकॉज डिस्काउंटिंग भी ज्यादा। इफ यू आर डूइंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वाला चीज तो कंपाउंडिंग भी ज्यादा होगा, डिस्काउंटिंग भी ज्यादा होगा, एंड योर इफेक्टिव रेट इज गोइंग टू बी हायर इफ यू इंक्रीज द कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। बोलो सिंपल, दैट्स व्हाट दैट एग्जांपल इज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट, दैट हायर द कंपाउंडिंग, हायर विल बी द इफेक्टिव एनुअल रेट, फ्यूचर वैल्यू एंड लोअर द प्रेजेंट वैल्यू। एंड दिस इज हाउ यू नीड टू कंसोलिडेट। कंटेंट अपने को शॉर्ट करना पड़ेगा। इस चैप्टर में जो टेबल दिया है उसके अलावा आई डोंट थिंक वी कम अक्रॉस एनीथिंग दैट यू नीड टू रिवाइज अभी। बाकी तो प्रैक्टिस है, एग्जांपल्स है। कंटेंट वाइज रिवाइज करने के लिए एग्जाम टाइम पे यू डोंट हैव एनीथिंग अदर देन द टेबल्स वी हैव डन। बोलो, इज एवरीबॉडी कंफर्टेबल टिल दिस पार्ट? प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीजिंग होगा बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 1 becomes 1.1255 टाइम्स, क्वार्टरली है सपोज, तो डिस्काउंट करेंगे तो उसको भी तो 1.1255 से डिवाइड करके करेंगे। इफ यू आर कंपाउंडिंग मनी फ्रॉम हियर टू हियर, यू डू इनटू 1.03 to the power 4, तो डिस्काउंट भी करोगे तो डिवाइड बाय भी तो 1.03 to the power 4 करोगे। So if you're increasing the compounding frequency, the compounding effect will also get magnified and the discounting effect will also get magnified. So ultimately your future value will also be higher and your present value will also be lower because higher amount से discount कर रहे अपने। बोलिए, following? There's just one thing that I have missed out. ये LOS तक complete हो गया है पूरा। There's खाली एक, वो present value factor वाला part खाली छूटा है मेरा अभी तक। बाकी till this LOS we have completed everything, right?
ऑलराइट, उसके बाद ब्रेक दे रहा हूं. बहुत सिंपल सा चीज है. Let's say time 0 and let's say 7 suppose, and let's say rate is 8%. यहां का 1 यहां पे कितना होता है बताओ? टेल मी द आंसर. यहां का 1 यहां पे कितना होगा? 0.5834. चलेगा. अच्छा 7 ले लिया, गड़बड़ हो गया. ठीक है. एक काम करिए, 7 इक्वल्स टू n डालो, 8% इक्वल्स टू i by y डालो, 7 इक्वल्स टू n डालो, 8% 8 इक्वल्स टू i by y डालिए, pmt इक्वल्स टू 1 डालिए, एंड गिव मी द FE वंस. 8.92. ठीक है. एंड कंप्यूट PV करिए. FE को पहले 0 डालना पड़ेगा. You have to overwrite FE as 0. 5.206. ठीक है, जो भी. एक बार समझ लीजिए फिर कॉपी कर लीजिएगा. सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, सपोज व्हेन आई एम सेइंग फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर और फ्यूचर वैल्यू फैक्टर 7 years 8%, इसका मतलब ये है कि अगर आज $1 डालेंगे 7 years के लिए 8% पे, तो फ्यूचर वैल्यू फॉर एवरी $1 क्या होगा? दैट इज 1 becomes 1.7138. प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब for every 1 rupee or $1 after 7 years is worth 0.5834 today. तो यहाँ 700 होगा तो that will be 700 into 0.5834. यहाँ 1000 का कैश फ्लो होगा, that means it's 583.4 today. That is present value interest factor or present value factor similarly, simply. Bracket same है, 7 years 8%. So present value interest factor, future value interest factor or simply future value factor or present value factor. Present value annuity factor 7 years 8% का मतलब क्या हुआ? 7 years 8% प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मतलब 7 years तक 1111 अगर एवरी ईयर मिल रहा है तो उसका आज का वर्थ कितना? 5.206. ऑफ कोर्स द आंसर शुड हैव बीन लेस देन 7. 7 तो एग्जैक्ट है, उसका डिस्काउंटिंग वैल्यू 1117 टाइम्स, तो 7 का पीवी 111 करके दैट इज 5.206. 7 years एट द रेट ऑफ 8%. सो अगर 7 times 111 होता है तो 8% डिस्काउंट करके उसका वैल्यू क्या? एंड फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज इफ 111 इज पेड फॉर 7 years, उसका फ्यूचर वैल्यू क्या होगा? 8.92. दैट इज फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर. सपोज दिस कंपनी पेज अ कूपन ऑफ 5% कूपन 1000 वैल्यू बॉन्ड. वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होगा? 5% कूपन है, 5% इज अ कूपन रेट, 8% इज अ डिस्काउंटिंग रेट और 7 year का बॉन्ड है. 50 into 5.206 प्लस 1000 into 5.834 इज द आंसर. क्या कर रहे हैं? 1000 का पीवी विच इज 1000 into 5.5834 एंड 50 7 टाइम्स कूपन मिल रहा है तो 111 का पीवी अगर 7 year का 8% करके 5.206 है, 50 कॉमन ले सकते हैं ना. 1 by 1 plus r, 1 by 1 plus r square, 1 by 1 plus r to the power 7 is equal to 5.206. So 50 by 1 plus r, 50 by 1 plus r square, 50 by 1 plus r cube, 50 by 1 plus r to the power 7, 50 कॉमन ले लो तो 50 into यही होगा ना उसका आंसर. 7 times 1 का पीवी ये है तो 7 times 50 का पीवी क्या? into 50. So present value annuity factor, future value annuity factor, interest factor.
future, present. Interest factor or normal, annuity factor. PVAF, FVAF. बोलो समझ में आया? Take this one down. This completes this LOS. यहाँ तक का पूरा content. Done? Comfortable till here, everyone? Alright, we'll just take a minute and then we'll continue.